today let's take the first force, the gravitational force. Let's take the gravitational force. All the derived forces are derived from these four fundamental forces in nature. First one is the gravitational force, second one is the electromagnetic force, third one is the strong nuclear force, and the fourth one is the weak nuclear force. Let's take the gravitational force, and it is very important force. Gravitational force. The gravitational force is the force, is attractive force. It is the attractive force between two bodies having mass. Mass. The gravitational force is attractive force between two bodies having mass. ये शॉर्टकट में बताया. और the gravitational force हमेशा दुनिया में, यूनिवर्स में कोई भी दो बॉडीज हो जिनका कुछ मास हो, उनके बीच में ये फोर्स होती है और ये हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर होती है. तो let's give some formula about it. आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा. The gravitational force between two bodies of masses m1 and m2 is the gravitational force between two bodies of masses m1 and m2 is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. For example, ये दो बॉडीज हैं, इसका मास m1 है और इसका मास m2. This is two bodies. और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो r है. फॉर एग्जाम्पल सेपरेशन डिस्टेंस. तो इनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स होगी. These two forces will attract each other like this. ये फोर्स अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, the bodies, and that force is directly proportional to product of their masses and inversely to the square of the distance between them. And F is equals to G m1 m2 divided by r square. This is very important, where G is universal gravitational constant, and its value is 6.67 10 raised to power minus 11 Newton meter square kg minus 2. This is the value of G. Gravitational, universal gravitational constant. This constant remains constant throughout the universe. और ये force, universal force है. This is a universal, gravitational force is a universal force. Why it is universal force? क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में लगती है. हर जगह विराजमान है. पूरे ब्रह्मांड में लगती है, छोटे से छोटे पार्टिकल्स के लेके बड़े से बड़े पार्टिकल्स. The gravitational force between any two bodies of masses m1 and m2 is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. ये दो बॉडीज हैं, एक m1 है और एक m2 है. उनके बीच में सेपरेशन डिस्टेंस कितना है? r. तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी. इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, मैंने बताया. और जो फोर्स होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी मासेस के बीच में, प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इनवर्सली टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. डायरेक्टली का मतलब क्या होता है कि अगर मासेस बढ़ेंगे, 5 kg थे, 10 हो जाए, 10 20 हो जाए, 100 200 हो जाए. यहाँ
अर्थ हो, सन हो जाए, सन या जुपिटर हो जो, तो जैसे जैसे मासेस बढ़ते जाएंगे तो फोर्स बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो फोर्स कम होती जाएगी। सी दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्स का मतलब है ये बढ़ेगा तो फोर्स घटेगी, और ये बढ़ेगा तो वो फोर्स घटेगी, और ये घटेगा तो फोर्स बढ़ेगी। इनवर्स, दिस इज डायरेक्ट रिलेशन, दिस इज इनवर्स, this is inverse relation, this is direct relation. So this is a formula, and don't worry about this, we have a separate chapter over it, the gravitation. तो इसके ऊपर एक पूरा complete chapter है, we will do it in further lectures. This is the definition of gravitational force, and gravitational force only exists between two bodies which have masses. If the bodies have no mass, so it cannot have a gravitational force. तो मैटर का होना बहुत जरूरी है इसके लिए, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। तो यू कैन से दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, इट इज द फर्स्ट पॉइंट। यू कैन गिव अ डेफिनेशन ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, दिस इज द डेफिनेशन। लेट्स गिव द सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज इट इज यूनिवर्सल फोर्स एंड इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। सेकंड पॉइंट, first point is definition, second point is it is a universal force. Universal मैंने अभी बताया कि ये छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स से लेके ब्रह्मांड तक, पूरे ब्रह्मांड गैलेक्सीज तक, यहां तक भी मैटर है, एग्जिस्ट करता है, वहां तक लगता है। इट इज यूनिवर्सल फोर्स एंड ऑलवेज अट्रैक्टिव। You will find it. It exists between neutron and neutron also, neutron and proton also, proton and proton also. इतना छोटे छोटे पार्टिकल्स इन न्यूक्लियस के अंदर जो रहते हैं उनके वहां से लेके it from galaxies to galaxies, you can say from one heavenly body to another heavenly bodies. Actually it governs all the universal activities. दुनिया में जितनी भी activities हो रही, this is only because of the gravitational force. I am standing here, this is only because of the gravitational force. ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर पहाड़ है, लिक्विड है, इवन एटमॉस्फेयर है, हम इस पे ऐसे से चिपके हुए हैं। we are stick to earth, not we, even सभी पहाड़, पेड़ पौधे, everything, even atmosphere, all is attracted towards it because of the gravitational force of earth. ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड के कारण चिपके। तो दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द, हाँ आप बोलेंगे कि दो मासेस कौन से? यस, दिस इज अर्थ, वी टेक मास ऑफ अर्थ, और अगर ये मैं हूं यहाँ पे तो आई विल टेक मास ऑफ माई सेल्फ। अगर कोई पहाड़ है तो आई विल टेक द मास ऑफ द माउंटेन। अगर कोई ट्री है आई विल टेक द मास ऑफ द ट्री एंड मास ऑफ अर्थ, और द डिस्टेंस बिटवीन द टू। तो हम ये फॉर्मूला लगा देंगे जो मैंने अभी बताया। कौन सा फॉर्मूला? F equals to G m1 m2 divided by r square. What is m1? Say my mass. What is m2? Mass of Earth. What is radius of Earth? You know, 6.4 10 raised to power. What is radius of Earth? 6.4 10 raised to power 6 meters. Or you can say exactly 6372 kilometers. ये भी थोड़ा हर जगह लग जाएगा, पोल्स पे कुछ हो रहा है, इक्वेटर्स पे कुछ हो रहा है, तो यू कैन टेक दिस 6.4 10 raised to power 6 meters. This is the radius of Earth. तो you can use the formula mass of Earth, आप लिख सकते हैं 6 into 10 raised to 24 kg, तो आप निकाल सकते हैं। we will do it in gravitation lesson. तो this हम अर्थ से चिपके हुए हैं या अर्थ ने हमें पकड़ कर रखा है, this is because of the gravitational force. It is a universal force. एंड छोटे छोटे पार्टिकल से लेके पूरे ब्रह्मांड तक अर्थ को किसने पकड़ कर रखा है? सन ने। अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड सन बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। कैसे रिवॉल्व कर रही है आई विल टेल यू लेटर ऑन, बट मून इज रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ, दिस इज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। सम solar system, all planets are revolving around sun because of the gravitational force of sun, and the planets, पूरा ब्रह्मांड एक दूसरे के आसपास का मूवमेंट है, हर पूरे ब्रह्मांड में मूवमेंट है। दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स।
हर बॉडी एक दूसरे को पकड़ के खींच रही है। एंड इट इज ट्रू, एक फ्रेज आप पाएंगे कि मैं अपनी उंगली से पूरे ब्रह्मांड को हिला सकता हूं। इफ आई एम हियर, द डिस्टेंस ऑफ ऑल स्टार्स और प्लैनेट्स और सेलेस्टियल बॉडीज इज फिक्स्ड विद रिस्पेक्ट टू माय टिप ऑफ द फिंगर। अगर मैं टिप ऑफ द फिंगर को रिमूव इधर शिफ्ट करता हूं तो ऑल डिस्टेंसेस विल बी चेंज्ड। अगर उंगली को मैं यहां से यहां ले आता हूं तो डिस्टेंस ऑफ all celestial bodies, all bodies in the universe will be changed with respect to my finger. So mathematically, I can move all the heavenly bodies with the tip of my finger. This is a phrase I think. It's mathematically it's true, but practically it is not true. But it is fact. When you change the distance, the forces will be changed, and if the forces will be changed, there is always a halchal, there is always a movement को इधर उधर जाएगा. So this is gravitational force. It is universal force and it is always attractive. दूसरा, third one, it doesn't depend upon the intervening medium. Intervening medium between the masses. Or doesn't depend on the presence or absence of other bodies. अगर मैं इन दोनों के बीच में फोर्स निकाल रहा हूं मैथमेटिकली, I am finding the force between sun, say this is sun, and say this is earth. इसके बीच में निकाल रहा हूं तो जो भी फोर्स सन और अर्थ के बीच में होगी दैट इज फिक्स्ड, प्रोवाइड द डिस्टेंस इज फिक्स्ड एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। तो इस फोर्स का मून के कारण कोई असर नहीं हो रहा, जुपिटर के कारण इन दोनों के फोर्स पे कोई असर नहीं हो रहा। जो इन दोनों के बीच में फोर्स है वो फिक्स्ड है एज फार एज द डिस्टेंस इज फिक्स्ड एंड द मासेस आर फिक्स्ड। अगर मैं यहाँ मून ले आता हूँ या ऐसे कुछ ले आता हूँ, इन दोनों के फोर्सेस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ, नेट इफेक्ट हो सकता है इसके ऊपर भी फर्क पड़ जाए, वो दैट इज डिफरेंट थिंग, दैट इज गिवन बाय द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, वो भी बाद में आएगा टॉपिक। लेकिन इन दोनों के बीच में फॉर एग्जांपल फोर्स है कोई एफ न्यूटन, तो इसके आसपास चाहे जितने मर्जी पार्टिकल्स हो चाहे ना हो, इसके बीच में फोर्स एफ न्यूटन ही रहेगी। दूसरा, बीच में मीडियम कौन सा है डजंट डिपेंड। अगर ए है इट्स ओके, अगर वाटर है इट्स ओके, कुछ भी मीडियम हो, दिस फोर्स विल नेवर चेंज। इट डजंट डिपेंड अपॉन द इंटरवेनिंग मीडियम बिटवीन द टू मासेस। मासेस के बीच में क्या मीडियम है डजंट डिपेंड ओवर इट, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द मासेस एंड द डिस्टेंस बिटवीन। Doesn't depend upon medium, doesn't depend upon presence or absence of other charges, other masses around it. Fourth one, it is the weakest force. दुनिया की weakest force है, ब्रह्मांड की सबसे कमजोर फोर्स है। बड़ा हैरानी होगी, weakest force ब्रह्मांड की weakest force है, लेकिन पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, पूरा यूनिवर्स इसके कारण चल रहा है, but it is the weakest force. इतनी weakest है, अगर आप किसी से कंपेयर करेंगे तो इट इज वेरी वीकर, 10⁻³ टाइम्स वीकर देन, टाइम्स यू कैन से वीकर देन न्यूक्लियर, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सी फोर्स हमारे पास? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सबसे स्ट्रॉन्ग होती है। उसके कंपैरिजन देखेंगे इट इज वेरी स्मॉल, वेरी वीक, 10⁻39 कुछ भी नहीं है, बट वीकेस्ट है, बट it is the weakest force, but it has the longest range. इसकी हद infinite है, पूरे ब्रह्मांड के अंत तक है। infinite कहां से? from nucleons to till the end of the universe. It exists up to infinity. छोटे छोटे न्यूक्लियॉन्स के बीच से लेके जहां तक ब्रह्मांड है वहां तक ये एग्जिस्ट करती है। इट हैज अ लॉन्गेस्ट रेंज, सी इट इज अ लॉन्गेस्ट रेंज, बट वीकेस्ट इन फोर्स, बस लॉन्गेस्ट रेंज, हर जगह विराजमान है। कोई पूछता है अगर कि इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाला कौन है, हम बोलते हैं गॉड। गॉड इज
moving all the things which are happening in the nature or the universe. But as for the physics is concerned, gravitational force is responsible for all type of movements and natural phenomena that is occurring in nature, in the universe. पूरा ब्रह्मांड इससे चल रहा है. This is, you can say, God to us, the gravitational force. यही पूरे ब्रह्मांड को चला. Fifth point. Sixth point, it obeys inverse square law. It obeys inverse square law. Inverse square law. अभी मैंने बताया inverse square law का मतलब force is inversely proportional to square of the distance. ये था. Force is inversely proportional to square of the distance. जैसे distance बढ़ता जाएगा force कम होती जाएगी. Distance अगर डबल होगा force 4 times कम हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी. Distance अगर 3 times बढ़ेगा 3 times हो जाएगा, 3r हो जाएगा तो 4 force 3 का square 9, 1/9 हो जाएगा. तो जैसे distance बढ़ता जाएगा force कम होती जाएगी. It obeys inverse square law. This is the meaning of this. Sixth point. Seventh point is, कैसे मिटा दे दो? It is a central force. It is a central force. It is a central force. What is a central force? For example, this is sun, this is earth. It acts from the center of the sun to the center of earth and along the line joining the two centers. Say for example, this is sun, this is earth. तो sun का center लेना है हमने और earth का center लेना है और ये center to center exist करती है. ऐसे या ऐसे नहीं करती है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं जाती. This is the central force. It acts along the line joining the, मैं क्या बोलूं? It acts along the line, मैं पूरा लिखूं? It acts along the line joining the centers of the two bodies. It acts along the center. It's central force. 8th point. It is conservative. It is conservative force. What are conservative force? ये भी further lectures में आएगा, लेकिन मैं यहाँ बता देता हूँ. Conservative forces क्या होती हैं? आपने सुना होगा पहले. Every force do a work. The work depends upon the force जो हम apply करते हैं. तो कंजर्वेटिव फोर्सेस वो होते हैं जो वर्क करते हैं, बट दैट वर्क डजंट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द पाथ फॉलोड, बट ओनली डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट. फिर से बता, मैं एग्जांपल लेकर बताता हूं. फॉर एग्जांपल, ये एक बिल्डिंग है और यहां से हमने कोई ब्रिक लेके जानी. ब्रिक हम लेके जाए, हम इसे डायरेक्ट लेके जाए या हम इसे बाय स्टेयर्स लेके जाएं या हम इसे यहां से घुमाते 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 फिर यहां लेके जाएं, यहां कहीं भी लेके जाएं घुमाते घुमाते. इट डजंट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द पाथ. इट इज ओनली डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट. वो कितनी हाइट होने की उस पर डिपेंड करता है. तो डजंट डिपेंड कि ये कहां से कैसे जा रहा है, नेचर कैसा है, फ्रिक्शन है, क्या है, ऐसा कुछ नहीं. ग्रेविटेशनल, आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रेविटेशनल वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स. The work done by the gravitational force doesn't depend upon the nature of the path followed. It only depends upon the initial and the final point. कहां से कहां लेके गई, कितनी हाइट गेन की, ये हाइट गेन की, depends upon this height only, not on the path. कहां से कैसे लेके गई, आज लेके गई कि कल लेके गई, हमें कोई लेना देना नहीं. हमें सिर्फ मतलब है कहां से कहां लेके गई, कितनी हाइट गेन की. It is conservative force. Why? Because it depends upon the nature of the path. It doesn't depend upon the nature of the path followed, but depends upon the initial and the final point. Ninth point is the exchange particle. This is under research. कि exchange particle क्या है, ये भी आपको शायद समझ में ना आए. But मैंने पहले बताया था quantum mechanics. Quantum mechanics में we are रिसर्चिंग ओवर द माइक्रोस्कोपिक व्यू. माइक्रो छोटा, हम देख रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर माइक्रोस्कोपिक पॉइंट क्या है. द एक्सचेंज पार्टिकल इज द ग्रेविटॉन.
the exchange particle is graviton. See, star लगा रहे हैं. Why star? Graviton is under research. अभी तक हम प्रूफ नहीं कर पाए हैं कि इनमें exchange particle क्या है. I mean to say, graviton is the packet of gravitational field, or graviton is a you can say quantum of gravitational field. So graviton is under research. So these are some characteristics of the gravitational forces, the important characteristics. Once again, I am giving it. First is the definition. It is always attractive in nature and exists between the two particles which has a mass. उनके बीच में mass है, उनके बीच में exist करते हैं. It is universal force and always attractive. Universal इसलिए क्योंकि छोटे से छोटे distance, छोटे particles से लेकर पूरे ब्रह्मांड तक लगते हैं. It doesn't depend upon the intervening medium between the two particles. दो particles के बीच में, दो masses के बीच में medium कौन सा है उस पर depend नहीं करती. Air हो, water हो, कोई भी fluid हो, कुछ भी डाल दो, doesn't depend. It doesn't depend upon the medium. Also, it doesn't depend upon the presence or absence of the other bodies. अगर हम sun और moon के बीच में निकाल रहे हैं या earth और moon के बीच में निकाल रहे हैं, it doesn't depend upon the presence or absence of other bodies near it. It is the weakest force. सबसे weakest है, बहुत कमजोर force है. कितनी कमजोर है न्यूक्लियर फोर्स? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स 10⁻39 टाइम्स कमजोर है. इट्स वेरी वीक, बट इट हैज द लॉन्गेस्ट रेंज. पूरा लॉन्गेस्ट रेंज ब्रह्मांड तक लगती है, फ्रॉम न्यूक्लियॉन्स टू पूरे ब्रह्मांड तक. इट्स रेंज इज अप टू इंफिनिटी एंड इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ. इनवर्स स्क्वायर लॉ मींस as distance increases, force decreases rapidly. It is like this. अगर आर हम यहाँ ड्रॉ करें, फोर्स ऐसे करें, तो इनवर्स के मींस ऑलवेज लाइक दिस. फोर्स इनवर्सली डिक्रीजेस, स्क्वायर से डिक्रीज होती है. एज द डिस्टेंस इंक्रीजेस, फोर्स डिक्रीजेस. एट इंफिनिटी द फोर्स बिकम्स जीरो. इट इज अ सेंट्रल फोर्स. इट एक्ट्स बिटवीन द टू बॉडीज फ्रॉम along the line joining the center of one body to the center of, and center से इसके center में होती है. It is conservative force. जो वर्क करती है, वो जो वर्क होता है नेचर ऑफ पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशंस पे डिपेंड करता है. कैसे लेके गए वो हम उस पे डिपेंड नहीं करता है. एंड द लास्ट वन इज द एक्सचेंज पार्टिकल. द एक्सचेंज पार्टिकल इज ग्रेविटॉन, और यू कैन से इट इज अंडर रिसर्च. जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसका कोई पार्टिकल होगा, द क्वांटम मैकेनिक्स ऑफ इट. Quantum particle, the packet of that gravitational field is, you can say, is called graviton. This is the gravitational force, and it exists everywhere in all the universe. It exists everywhere throughout the universe. हर जगह ये विराजमान है. बस इसका ये ख्याल रखना है कि ये weakest force है and has the longest range up to infinity. That's all for today. Thank you.